Today we are starting to talk about our atmosphere, and the discussion will center on one of the layers of the atmosphere, which is called stratosphere. And we are going to talk about what kind of chemistry actually happens there. So it's all about stratospheric chemistry today. I think we are good to start. People are still joining in, so maybe, okay, there you go. Okay. Yeah. Okay, before doing that, why not we do one thing? Again, I'm using this poll service and to get your opinions. Uh, and I have some questions about, you know, ozone. Just feel free to, record your answer. It's not graded. It's no shame at all. Shaming what? No element of anything is involved. It's just the gathering of the opinion from you all. Okay. So here is the chat box, and I'm copying this link there, and let me make sure that this, this is active, so that you could. Uh-huh. Okay. Is it active? Oh no, it wasn't activated. So I have activated the this poll, and let's do it for 2 minutes. After 2 minutes, I will lock the responses and see. You'll have to select all the statements which you think are correct about the ozone, right? So there you go. Sir, but I can only select one option. Ah, really? Yes, sir. That should not be. Okay. Yes, sir. Same is the case for me. Okay. Now my mistake. So please, hold this activity for a moment so that I could edit it. So okay, can you try now? Is it any better? So what I'm doing, that I'm clearing the responses, okay, So it works now. so that you had a chance to. Yes, sir. It is working now. Okay, so do you want me to clear the responses, previous responses, and start from zero, or would that be fine? Okay, let me do that thing. I'm locking it at the moment, clearing all the responses, and let's start again. Start from, from the beginning. Okay, I think it would be better. So please record your responses again.
Sure. I'm sending the link again for those who, joining late. So here is the link. Okay, so I have received almost how many responses? I'll check later. But here is the result. 35% of the people think that it protects us from harmful radiations from sunlight. And 18% think that it's an odorless gas. I think it's always a good idea just to, it protects us, 35%. Okay. Odorless gas, this is almost 18% of the responses. Not 18. Let me check it again. Yeah, 18%. And then I have another response which says that it occurs naturally. This is again 18%. And 25% of people think that ozone is depleting. And I think 5% think that it causes global warming. Right. Okay, so this was the result of this activity. I do not. Nobody selected the option that ozone layer in upper atmosphere is healing, or ozone may cause skin cancer. Okay, so these two options are actually also correct. So ozone causes skin cancer. Okay, and the other thing is, that's not correct. It's the UV radiations that cause the cancer, and it doesn't cause the global warming. Okay, so this is all about this activity. So the idea behind this activity was just to see how much background knowledge do we have about this ozone. This is a phenomenon that is, I think, a thing we all should know. Why it is necessary to know the UV index of your area, and apply any sunscreens before going out, and what are the health effects of the ozone, the UV radiations that reach the earth, and so on, many other things. So today we are going to talk about ozone and many other things, how it is formed, how it is depleting, and what is the structure of the atmosphere, how radiations, electromagnetic radiations interact with matter, and so on. So let's start by discussing about the atmosphere and the regions present in the atmosphere. Okay, we all know, I think, what is the composition of our atmosphere, right? For example, it's almost 78% nitrogen, 21% oxygen, 1% argon, and 0.04% CO2. So you know that the levels of CO2 are continuously increasing. So I have taken this latest value of November 2020, right? And I think it was 415 ppm. Okay. Before talking about the composition of Earth in detail, or other things, I think we should talk about how we present the concentration of gases in air, how we talk about them. So if we are talking about the absolute concentration of gases are the pollutants. So we can use one unit, which is the number of molecules of the pollutant or gas per cubic centimeter of air. Cubic centimeter is the unit of volume, right? Okay.
And if we talk about cubic decimeters, 1 cubic decimeter basically equals 1 liter, right? So, which means that 1 cubic centimeter will be 1 milliliter, right? So, क्यूबिक सेंटीमीटर को सीसी भी कहते हैं. आपने सिरिंजेस देखा होगा, ये 5 सीसी की सिरिंज है, इंजेक्शन है इतने सीसी का, तो सीसी इज क्यूबिक सेंटीमीटर, वॉल्यूम यूनिट. सो एक गिवन वॉल्यूम में यानी क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं आपकी गैस के. दिस इज वन वे ऑफ टेलिंग द एब्सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ ए गैस और ए पॉल्यूटेंट. Then we have another way. We can also tell the partial pressure of the gas. Okay, so if it's a mixture of different gases, what is the pressure exerted by the individual gas? That is the partial pressure. And partial pressure, according to this ideal gas law, because you have all taken the Chem 101, so you must be familiar with this gas law. This says mathematically that product of pressure and volume is equal to nRT. Okay, which is basically saying of another thing. If the pressure is directly proportional to volume, is directly proportional to temperature. If constant pressure is there, and there is a relationship between the pressure and the number of moles. Okay, R is a gas constant, T is the absolute temperature, and we can basically write it in this term, which is P is equal to N over VRT. This term is number of moles per volume is basically called the molar concentration. Okay, so molar concentration tells you that in a unit volume, how many moles of a gas or a pollutant or any species are there. Okay, so it is moles per volume, right? Per unit volume, let's say it is 1 liter. So this is another thing. Gases के मामले में हम हमेशा ये चीज partial pressure we prefer to talk about in terms of the pressure, partial pressure, moles per volume units. Okay, so that was about absolute concentration. What about relative concentration? Relative concentration में मतलब ये है कि एयर के टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं और उसमें CO2 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, that will be relative concentration. ठीक है, यानी मिक्सचर की टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं और उसमें एक इंडिविजुअल गैस के कितने मॉलिक्यूल्स हैं. ये रेशियो जब आप ले रहे हैं तो दैट इज रिलेटिव कंसंट्रेशन. और रिलेटिव कंसंट्रेशन में गैसेस या पॉल्यूटेंट्स की कंसंट्रेशन इतनी कम होती है कि वी टेक दीज कंसंट्रेशंस, वी मल्टीप्लाई देम विद ईदर 100 to present them in percentage, or 1 million to present them as parts per million ppm, or parts per billion, or parts per trillion, and so on. This is basically what we call the mole fraction. Physics में इसको mixing ratio भी कहा जाता है. So mixing ratio basically यही बता रही है कि आपके पास मिक्सचर के टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं और उसमें एक इंडिविजुअल जो पॉल्यूटेंट है उसके मॉलिक्यूल्स कितने. मसलन अगर मैंने कहा ना 415 ppm CO2 है आजकल एयर के अंदर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल एयर का वॉल्यूम अगर कितना हो 100 मिलियन, तो उसमें 415 जो एटम्स हैं वो प्रेजेंट होंगे CO2 के. ठीक है, सो दिस इज पार्ट्स पर बिलियन. ओके, पार्ट्स पर बिलियन. तो यहाँ सॉरी पार्ट्स पर मिलियन. सो यहाँ पे हमने देखा है पार्ट्स पर मिलियन में दिस इज आवर रेफरेंस वैल्यू 10⁻⁶, we call it ppm. Parts per billion में this is the 10⁹ और parts per trillion में it's 10⁵. ठीक है, तो parts per million ये ऐसी चीज है जो कि आपको बड़ी फ्रीक्वेंटली आपको नजर आएगी. मसलन हम कहते हैं कि हमारे जो नेशनल एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, every country has them. We call them NEX, National Environmental Quality Standards. According to that, the levels of ozone in air must not exceed, I think, 10 ppm. Okay, so हम इनको इस तरह से इसको बताते हैं. So is that clear? I think ppm and pp
बी और पीपीटी इज नॉट समथिंग जिस पे हमें इतना ज्यादा टाइम लगाना चाहिए. व्हाट डू यू से? राइट? अगर ऐसा है तो वी कैन मूव ऑन. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आई कैन explain more, but I think we have more important things. ये ऐसी चीजें हैं कि you already know. ठीक है? अगर नहीं भी पता तो I think you can just work on it, refresh करने के लिए, and you are quite good to go. जो important चीज इससे ज्यादा है वो हमने मैं जरा इसको क्लियर कर देता हूँ सबको. ओके, वो ये है कि लेट्स टॉक अबाउट द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. ओके, तो इसमें एक मैंने प्लॉट आपके सामने रखा है. इसमें एक्स एक्सिस पे ओजोन की कंसंट्रेशन, और आप देखें मैं एब्सोल्यूट कंसंट्रेशन यूज कर रहा हूं क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट 10⁻12 मॉलिक्यूल्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर. राइट? तो ये क्या हुआ? एग्जैक्टली दिस इज number one way of the presenting absolute concentration. And on y-axis, it's the altitude that is drawn in kilometers. Okay. So the very first layer, which starts from the surface of Earth up to 15 kilometers here, this layer is called troposphere. और ये वो एरिया है जहां के बेसिकली हम लोग रहते हैं और ज्यादा जो एयर का ये हिस्सा है इसमें हम एक्सपोज होते हैं. तो ट्रोपोस्फियर के अंदर अगर कोई चीज होगी, पॉल्यूटेंट्स होंगे, तो दे आर गोइंग टू अफेक्ट अस एंड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. क्योंकि प्लांट्स का भी उसी तरह से, एनिमल्स का भी उसी तरह से इंटरेक्शन होता है ट्रोपोस्फियर के साथ जिस तरह से हमारा हो रहा है. The second layer, which is definitely above troposphere, so it ranges from 15 to 50 kilometer. This is called the stratosphere. Okay. और हमने एक बात यहाँ पे देखनी है कि जो हम बुलंदी पे जाते जाते हैं, आपको पता है कि हमारे पास जो डेंसिटी है वो क्या होती जाती है? व्हाट डू यू से? मतलब एयर की जो डेंसिटी इट डिक्रीजेस Yes, sir. डिक्रीज करती जाती है. ठीक है? और जो हम एयर सरफेस ऑफ अर्थ के पास होंगे, ये जाहिर बात है कि क्या करेगी? इंक्रीज करती जाएगी. सो दिस इज बेसिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर. ऐसे हो रहा है. ओके. अच्छा, फिर उसके बाद ये बात है कि अब सवाल ये पता होता है कि 50 किलोमीटर के ऊपर कौन सी लेयर्स हैं, तो वी हैव कॉल्ड देम सम नेम्स टू. मसलन मैं बैक जा रहा हूँ. दिस इज कॉल्ड द मेसोस्फीयर व्हिच इज फ्रॉम 50 to 80 किलोमीटर्स. और चूंकि मेरा स्केल यहाँ से आउट हो रहा है, तो लेट मी टेल यू दैट वी हैव आल्सो टू अदर्स व्हिच इज कॉल्ड द आयोनोस्फीयर, यानी जहाँ पे ज्यादातर हमारे पास आयंस की फॉर्म में मटेरियल मैटर एग्जिस्ट करता है. सो दिस इज आयोनोस्फीयर. और बिल्कुल ही जब हम 500 किलोमीटर से बाहर हो जाते हैं तो उसको हम एक्सोस्फीयर कहते हैं. ठीक है? दिस इज टोटली above 500 kilometers. This is basically above 80 to 400, 500 kilometers. ठीक है? And last one is exosphere. मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ, exo. ठीक है? इसका मतलब है कि ये 500 किलोमीटर से ही काफी दूर वाला एरिया है. हमें ज्यादातर जो कंसर्न है वो स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर है. ठीक है? अच्छा, अभी तो प्लॉट तो हमने किया नहीं. ठीक है? सिर्फ एक्सेस और लेयर्स को डिफाइन किया. तो लेट्स प्लॉट इट. और प्लॉट हम क्या करने जा रहे हैं? ओजोन की कंसंट्रेशन, हाउ इट चेंजेस विद एल्टीट्यूड. क्या हो रहा है? एज वी इंक्रीज, एज द हाइट इंक्रीजेस, ओजोन कंसंट्रेशन समहाउ इंक्रीज कर रही है. ठीक है? ट्रोपोस्फियर के अंदर हमने देखा है कि इट्स क्वाइट लेस एज इट इज इन द स्ट्रेटोस्फियर. और बल्कि स्ट्रेटोस्फियर का ये जो लोअर स्ट्रेटोस्फियर है तकरीबन कितना बनता होगा ये? 15 से 35 के बीच में तकरीबन ज्यादातर इसका जो एरिया है ना इसके अंदर लाई कर रहा है ये वाला. आप देखिए, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो एरिया है फ्रॉम 15 to 35 किलोमीटर जहां पे ओजोन की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, दिस इज कॉल्ड द ओजोन लेयर.
दिस इज ओजोन लेयर, ठीक है। और इसी का हम कहते रहते हैं कि डिप्लीट कर रही है और ये हमें प्रोटेक्ट करती है, एंड मेनी अदर थिंग्स जो कि आज हम रिपीट करने भी जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब स्ट्रेटोस्फियर में जब हम अपर स्ट्रेटोस्फियर में जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि एज द हाइट इंक्रीजेस फर्दर, वो मैंने ये क्या कर दिया, सॉरी, सारी चीजें, ओके, एनीवे, स्ट्रेटोस्फियर में एज वी मूव फर्दर अप again, now the concentration is dropping, and mesosphere mein there is almost no ozone there. You must be wondering why there isn't any ozone in mesosphere, and also why there is so less ozone in troposphere, and why there is the maximum ozone in stratosphere. तो आज हम इन 3 क्वेश्चंस के जवाब भी देखने जा रहे हैं। अच्छा, ओजोन के बारे में आपको मैं ये बताऊं कि इट हैज ए पंजेंट स्मेल, यानी ऐसी स्मेल होती है कि ये फौरन हमारे जो नोज है ना, सेंसरी ऑर्गन है जो नोज, वो इसको डिटेक्ट कर सकता है। आपने इसको किया होगा बहुत सारी जगहों पे, जहां पे भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस चलती हैं, फोटोकॉपियर के पास आपने नोट किया होगा कि एक बड़ी अजीब सी स्मेल आती है हमेशा। कितने लोगों ने नोट की हुई है आप में से? जब मैं ये बात कर रहा हूं तो आपको कोई एक होता है, स्पार्क होता है माइंड के अंदर कि हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली होती, तो दैट्स ओजोन, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, मेनी ऑफ यू हैव ऑब्जर्व दैट। सो ओजोन ऐसी चीज है कि यू नो वी कैन सेंस इट वेरी वेरी इजीली। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि इट्स वेरी डेंजरस फॉर योर रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो अगर ट्रोपोस्फियर में ओजोन होगी तो आप उसको इनहोल करेंगे, इट्स गोइंग टू किल द लंग टिश्यूज। तो ट्रोपोस्फियर में हमें नहीं चाहिए ये, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और अगर हमारी एक्टिविटीज की वजह से ओजोन का लेवल इंक्रीज हो रहा है तो दैट इज ए पॉल्यूटेंट। ट्रोपोस्फियर में हम इसको नहीं चाहते। स्ट्रेटोस्फियर में इट इज गुड फॉर अस बट नॉट इन ट्रोपोस्फियर। और इसके अलावा ये और काम भी करती है, मसलन इट आल्सो रिएक्ट्स विद अदर स्पीशीज टू जनरेट सम अदर पॉल्यूटेंट्स, जिन्हें हम सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। इसकी बात हम करेंगे डिटेल में। और जो फोटोकेमिकल स्मॉग होता है, जो कि फ्यूचर में हमारा एक टॉपिक है, उसमें भी ओजोन का रोल है। तो ट्रोपोस्फियर में हमने ये देखा कि अगर किसी वजह से ये बन रही है तो वी नीड टू मॉनिटर इट कि इसके लेवल्स क्या हैं। जितने भी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के डिपार्टमेंट्स होते हैं वो ओजोन को मेजर करते हैं। इट्स ए क्राइटेरिया पॉल्यूटेंट, हम इसको मॉनिटर करते रहते हैं और इसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू भी रखी हुई है कि किससे ऊपर ये नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये तो दैट वाज अबाउट द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। सो व्हाट नेक्स्ट? एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमने यहाँ पे प्लॉट कर दी है, और वो ये है कि हाउ द टेम्परेचर वेरीज विद एल्टीट्यूड। आपने इस ग्राफ को गौर से देखना है, लेट्स से फॉर 30 सेकेंड्स, और चैट बॉक्स में मुझे ये बताएं कि व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशंस। क्या डिस्टिंक्ट किस्म की ऑब्जर्वेशंस आपको नजर आ रही? ये मैंने चूंकि हाथ से प्लॉट किया हुआ, मे बी इट्स नॉट सो वेल, तो एनीवे आई थिंक यू माइट गेट द आइडिया। सो हाँ, एग्जैक्टली हम ये देखते हैं कि इफ वी लुक इनटू द different layers of the atmosphere, there's a distinct trend. Okay, let me show you the one from the book, जो कि ज्यादा क्लियर आपको नजर आ रहा है यहाँ से, ठीक है। आप खुद देखिए कि troposphere is the region where temperature decreases, yes, temperature decreases with the altitude। और ये हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि एग्जैक्टली ट्रोपोस्फियर में वाकई जो हम हाइट पे जाते हैं टेम्परेचर कम होते जा रहे हैं। लेकिन स्ट्रेटोस्फियर में इट हैज द ऑपोजिट ट्रेंड, राइट? इट increases, temperature increases up to a maximum with the height। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मेसोस्फियर के अंदर भी ये वापस जो है ना
हाइट के साथ टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। अब ये एनॉमलीज क्यों हैं, इस सवाल का जवाब भी हमने देखना है, ठीक है। और इसको हम कहते हैं कि व्हाई देयर इज अ टेम्परेचर रिवर्सल इन स्ट्रेटोस्फीयर एंड इवन इन मेसोस्फीयर। लेयर्स के अंदर ये रिवर्सल ऑफ टेम्परेचर्स क्यों हो रहे हैं। आज के लेक्चर के एंड तक ये जो अभी तक हमने तकरीबन 6 क्वेश्चंस कर लिए हैं, अगर इनका जवाब नहीं मिला तो you will have to ask me at the end कि what we asked some questions, तो क्या उनके आंसर्स हैं फिर। ओके, सो एयर की, एटमॉस्फेयर की हमने बात कर ली। लेट्स टॉक अबाउट a very important thing in our atmosphere, that is sunlight. और you know कि sunlight is basically electromagnetic radiation, और electromagnetic radiations जो हैं they are very important to talk about, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस इनिशिएट करती हैं और बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स बनने की वजह है। तो पहली चीज जो हमने वो देखी है वो ये है कि केमिस्ट्री ऑफ जो ओजोन है, ओजोन का जो बनना है, ओजोन की डिप्लीशन है, दोनों में लाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। बिकॉज ये जो सनलाइट के अंदर एनर्जी है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो एनर्जी होती है, दे कैन इनिशिएट सम केमिकल रिएक्शंस, ओके। हम उनको फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं, बिकॉज सन इनिशिएट्स देम और लाइट इनिशिएट्स देम, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शंस। तो हमने इनकी बात करनी है। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के क्या क्या पार्ट्स हैं। आप जानते होंगे, लेकिन हम अपना इसको रिफ्रेश करते हुए चलते हैं आगे। हम सारा के सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो पार्ट है उसको हम नहीं देख रहे। We'll only talk about 3 important parts, जो कि first one is the ultraviolet region. आप खुद देख सकते हैं कि it's a region from 50 to 400 nanometer, और इसके अंदर भी बेसिकली 3 हिस्से होते हैं। उनको हम देखेंगे साथ साथ। मैंने आई थिंक राइट पे इधर इनको समराइज किया हुआ है, तो आई थिंक इट्स बेटर कि हम इनको देख लें। सो यूवी लाइट की ये रेंज है, यूवीए है, विच इज बेसिकली जिनका यूवी रीजन के अंदर वो रेडिएशन है जिनकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, यानी 350 से 400 नैनोमीटर। देन वी हैव यूवीबी, जिनका वेवलेंथ कम हो रहा है, यानी एनर्जी उनकी बढ़ती जा रही है। हमें पता है एनर्जी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन होता है। और वी हैव इवन द मोस्ट एनर्जेटिक रेडिएशन, जिन्हें हम यूवीसी कहते हैं, दे आर फ्रॉम 200 टू 180 नैनोमीटर। अब यूवी से जब हम फर्दर आगे आते हैं, यानी टुवर्ड्स द लॉन्गर वेवलेंथ्स, तो दिस इज द रीजन विच हमारी जो आंख है वो भी देख सकती है, डिटेक्ट कर सकती है, जिसे विजिबल रीजन कहते हैं, ठीक है। फ्रॉम 400 टू 750 नैनोमीटर। सो 400 पे तकरीबन में ब्लू लाइट नजर आती है, 750 पे रेड रीजन है। तो ये पूरी बाकी जितने भी कलर्स हैं, हम हमारी आंख इनको डिटेक्ट कर सकती है। और व्हाट इज बियॉन्ड विजिबल रीजन इज कॉल्ड द इंफ्रारेड रीजन। इंफ्रारेड जो है वो 4000 से 10,000 नैनोमीटर तक है, और इसमें भी इस एंड को जो कि विजिबल के पास है, इसे हम नियर इंफ्रारेड कहते हैं, और इसको फार इंफ्रारेड कहा जाता है, ठीक है। इंफ्रारेड रेडिएशंस बड़ी काम की चीजें हैं। टीवी के रिमोट कंट्रोल इन्हीं पे काम करते हैं। और फिर इसी तरह से आजकल ये जो कोरोना के दिनों में टेम्परेचर चेक किया जाता है माथे पे, वो गन सी लगा के, वो भी आईआर के बेस पे या इंफ्रारेड के बेस पे काम करते हैं सारे के सारे। अच्छा, आइडिया आपको ये देना है कि ये जो लाइट का इंटरेक्शन है ना विद मैटर, दैट्स ए फेनोमेनन, एक बड़ी एक्सक्लूसिव फेनोमेनन है, क्योंकि इट हेल्प्स अस कैरेक्टराइज डिफरेंट थिंग्स। मसलन आपको बाहर धुंध क्यों नजर आती है, स्मॉग आंखों से क्यों नजर आता है? इसलिए कि सनलाइट स्कैटर हो रही है। अगर पार्टिकल्स के साथ वो स्कैटर ना होती तो आप उनको ना देख पाते, पार्टिकल्स नजर ना आते, धुंध नजर ना आती आपको। तो ये जो लाइट इंटरेक्ट करती है डिफरेंट मटेरियल्स के साथ, ये बड़ा ही बेसिकली हमारी आंख हम जो देख पा रहे हैं, ये भी एक ऐसा ही फेनोमेनन है। तो लाइट जब किसी चीज के साथ अब्जॉर्ब करती है, इंटरेक्ट करती है, तो क्या क्या हो सकता है? वैसे आपके जहन में क्या आता है? व्हाट डू यू थिंक कि
when light interacts with something, तो क्या होगा लाइट को? एग्जैक्टली हमने देखा कि बहुत सारे फेनोमेना हैं। रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा है, आपने रिफ्रैक्शन की बात की होगी, आपने अब्जॉर्प्शन की बात की है, स्कैटरिंग की बात की है। तो बेसिकली ब्रॉडली स्पीकिंग आई वुड से कि इट इज अब्जॉर्प्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, ठीक है। इस तरह के जो फेनोमेनन है ना वो होते हैं। तो इसी तरह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स सिंस दे आर मैटर, तो मॉलिक्यूल्स जो हैं दे कैन अब्सॉर्ब सम लाइट, ठीक है। और जब वो ऐसा करते हैं तो दे आर एक्टिवेटेड, दे आर एनर्जाइज्ड, ठीक है। और हम कहते हैं दे आर एक्साइटेड नाउ। और जब वो इस फॉर्म में होते हैं तो दे कैन रिएक्ट केमिकली। आम हालात में वो केमिकल रिएक्शन के लिए नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि दे नीड सम यू नो पुश चाहिए होता है उनको, एक जिसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। उनको एक पुश चाहिए होता है, तो वो पुश उनको जब लाइट दे देती है तो दे कैन केमिकली रिएक्ट, ठीक है। तो ये है कुछ फिजिक्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये भी चीजें ऐसी हैं कि जो हम मतलब साइंस के स्टूडेंट्स होने के नाते सबको पता है। नेक्स्ट थिंग जो हम देखने जा रहे हैं वो है कि नाउ यू सी व्हाट वी कॉल स्पेक्ट्रम, राइट। इसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। वो स्पेक्ट्रम वो चीज है कि जब हम वेवलेंथ को प्लॉट करते हैं अगेंस्ट द एब्जॉर्प्शन, तो जो प्लॉट आपके पास आता है उसे कहा जाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यस, समटाइम्स इमिशन स्पेक्ट्रा भी होते हैं, तो इसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। और ये आपको जो नजर आ रहा है वो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑक्सीजन का, O2, ठीक है। अच्छा, आपको क्या नजर आ रहा है इसके अंदर कि दिस रीजन इज क्वाइट नॉइजी, क्योंकि आप देखें ना कि इट इज मूविंग अप, ऐसे अप डाउन आ रहा है, ठीक है। बट नेवरदलेस द वैल्यू ऑफ एब्जॉर्प्शन इज मतलब रीजनेबली हाई। तो हम कह सकते हैं आसानी से कि जहां से हमारा ग्राफ शुरू हो रहा है, तकरीबन कितना है ये, 1 2 3 4 5, तकरीबन 60 70 80 90 60 70, हाँ 70 से लेके हम लेट्स से इसको कह देते हैं 240, बल्कि 250 तक। 70 से 250 की रेंज में ऑक्सीजन अब्सॉर्ब करता है तकरीबन तमाम ही रेडिएशंस, ठीक है। कुछ रेडिएशन ज्यादा अब्सॉर्ब हो रही है, मसलन हमें यहाँ पे मैक्सिमम नजर आ रहा है, इस पीक इज मैक्सिमम हियर, सो दिस रीजन इज वेयर द मैक्सिमम अब्सॉर्प्शन इज देयर। ये जो रीजन है जहां पे मिनिमम अब्सॉर्प्शन हो रही है, कैसे पता चला? वाई एक्सिस पे हम स्केल देख के बता रहे हैं कहाँ पे अब्सॉर्प्शन हो रही है, कहाँ पे कम हो रही है। सो वी कैन से क्वाइट इजीली कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है दैट अब्सॉर्ब्स क्वाइट वेल इन दिस रीजन, ठीक है। 110 20 से लेके 160 70 80 के करीब। अच्छा, सो अब हमने ये देखा कि आपको मैं बताता चलूं कि सन जो है उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो आती है उसमें विजिबल रीजन भी है, उसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी हैं जो कि सूरज से आती है। लेकिन होता क्या है कि नो यूवी लाइट बेसिकली having a wavelength shorter than 220 nanometer reaches the earth surface। यानी अर्थ सरफेस में जो यूवी आती है वो कौन सा यूवी बना? फिर थोड़ी देर पहले हमने इनकी क्लासिफिकेशन की थी। ज्यादातर हम इसको ये कहते हैं कि मोस्टली यूवी ए रीच करता है, ठीक है। मोस्टली यूवी ए, कुछ यूवी बी भी हो सकता है, यूवी ज्यादातर जो है ना वो यूवी जो ए है वो रीच करेगा। यूवी बी और यूवी सी दोनों फिल्टर हो जाते हैं। फिल्टर क्यों होते हैं अभी हम उसकी बात करते हैं। सो बेसिकली जो कुछ यूवी लाइट का हिस्सा है दैट इज फिल्टर्ड बाय द ऑक्सीजन गैस दैट बेसिकली लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फियर। हमने कहा था कि हाँ यहाँ पे ये जो रीजन है यहाँ पे एयर की डेंसिटी काफी कम होगी, यानी एयर मॉलिक्यूल्स कम होते हैं, यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स भी फिर कम होते हैं। लेकिन
because of the interaction with the UV light, especially UVC, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल स्प्लिट होके ऑक्सीजन एटम्स बनाते हैं। लेकिन वो ऑक्सीजन एटम्स वापस, जाहिर बात है उन्होंने कुलयन करना है, कुलयन जब आपस में करते हैं तो वापस ऑक्सीजन बन जाती है, ठीक है। लेकिन हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि द रीजन अबव स्ट्रेटोस्फीयर व्हिच इज कॉल्ड द मेसोस्फीयर, उसमें ऑक्सीजन इंटरैक्ट करती है यूवी लाइट के साथ, और बदले में क्या हो जाता है कि इट डिसोसिएट्स। अच्छा, तो बेसिकली हमने ये देखा कि हमें खुद इधर नजर आ रहा है कि भाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चूंकि अब्जॉर्ब कर सकता है, और वो जो अब्जॉर्ब कर रहा है वो बिल्कुल यूवी रीजन है। हमने कहा था 50 से लेके 400 नैनोमीटर तक यूवी रीजन है, और इट इज अब्जॉर्बिंग क्वाइट वेल इन यूवी रीजन। और जब ये अब्जॉर्ब करता है तो एक्साइटेड स्टेट में इट कैन डू सम केमिकल रिएक्शंस लाइक दिस स्प्लिटिंग, ठीक है। और स्प्लिटिंग उसकी जो है ना वो हम देखते हैं कि कैसे होती है। अच्छा, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो अभी हमने यहाँ पे देखा था कि एनीथिंग विच इज अबव 250 नैनोमीटर इज नॉट मच अब्सॉर्ब्ड बाय ऑक्सीजन। क्योंकि ऑक्सीजन का यहाँ पे हमने देखा है कि अब्जॉर्प्शन आके बड़ी मिनिमम हो गई है, ठीक है। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर यूवी रीजन तो 400 तक है, तो 250 से लेके 400 नैनोमीटर की जो यूवी लाइट है इसे कौन अब्जॉर्ब करेगा? 250 से 400 तक, ठीक है। उससे पहले वाली को तो हमने कहा कि भाई क्वाइट रीजनेबली ऑक्सीजन उसको अब्जॉर्ब कर सकता है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि ये ओजोन का स्पेक्ट्रम अगर आप देखें, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ओजोन को मैं अब O3 लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि वी नो कि we have short names for all the chemical compounds in chemistry. We call them chemical formula. तो ये O3 है, यानी ओजोन है। अब इसे अगर आप देखें तो it absorbs quite well from 210 to चले 300 डिग्री सी तक, with a maximum absorption in this range तकरीबन 255, ठीक है। 255 नैनोमीटर पे अब्जॉर्ब करती है, लेकिन मोस्टली it is absorbing all radiation from 210 to 290 degrees, 290 nanometer. ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये जो रेडिएशंस हैं 220 से लेके 320 तक, ये सारी की सारी ओजोन इनको अब्जॉर्ब कर लेगा। तो अब थोड़ी सी पिक्चर हमारे जहन में ये बन रही है, पता नहीं क्लियर हुआ या नहीं हुआ, लेकिन हमने ये कहा ना कि ये ट्रोपोस्फियर है, ये मैं इसे T लिखता हूं, फिर स्ट्रेटोस्फियर है, और फिर मेसोस्फियर है। तो यहाँ पे एक रिएक्शन हो रहा है कि O2 है, इट अब्सॉर्ब सम लाइट, और मैं उसे लिखता हूं UVC, और ये UVC करने के बाद स्प्लिट होता है, और जो चीजें बनती हैं उन्हें हम एटॉमिक ऑक्सीजन कहते हैं। O2 इज मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स, जो कि दो ऑक्सीजन के एटम मिलकर बनाते हैं। ये जो चीज लिखी हुई है ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं है, इसका मतलब है कि एटम्स अलग अलग रह रहे हैं, और ये हाईली रिएक्टिव चीजें होती हैं, जो कि एटॉमिक फॉर्म में ऑक्सीजन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, इट इज अनस्टेबल, हाईली रिएक्टिव, ठीक है। तो समटाइम्स ये क्या करता है कि वापस ऑक्सीजन बनाएगा, या जो भी चीज उसे मिलेगी ना एयर के अंदर वो उसके साथ उसने रिएक्ट कर देना। स्ट्रेटोस्फियर में हमने ये कहा कि चूंकि ये वो रीजन है जहां पे ओजोन ज्यादा है, तो ओजोन बेसिकली यूवीबी को ज्यादातर जो है ना वो यहाँ पे अब्जॉर्ब कर लेगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि यूवीबी यहाँ पे है, और बेसिकली ओजोन इसको अब्जॉर्ब करता है। लेकिन ओजोन जब ये अब्जॉर्ब करेगा तो इट विल स्प्लिट इनटू ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और एटॉमिक ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाता है। तो यूवीबी की वजह से ऑक्सीजन ओजोन की डिप्लीशन हो रही है, यानी ये जब अब्सॉर्ब कर लेता है उसे, इट विल नॉट रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ, बट इट विल डिप्लीट ओजोन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओजोन की डिप्लीशन जो है वो इस तरह से होती रहेगी। लेकिन वी आल्सो नो कि देयर आर टू रिएक्शंस दैट आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली,
the formation of the ozone in stratosphere and its decomposition. तो दोनों का जो रेट है ये तकरीबन बराबर हो जाता है, अगर तो मतलब ह्यूमंस ना हो तो। इस स्टेट को क्या कहते हैं? यू रिमेम्बर एनी वर्ड फॉर दिस सिचुएशन इन विच? Equilibrium. हाँ, इक्विलिब्रियम बड़ी सोफिस्टिकेटेड टर्म है इसके लिए। हम इसे स्टेडी स्टेट कहते हैं, ठीक है? आई थिंक फिजिक्स की जुबान अगर यूज की जाए तो दिस इज ए स्टेट विच इज कॉल्ड द स्टेडी स्टेट, और परफेक्ट स्टेडी स्टेट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम, ठीक है? दिस इज ए। तो अमूमन इसलिए ओजोन की जो लेयर है उसे कुछ नहीं होना चाहिए इन प्रिंसिपल, ठीक है, क्योंकि इट्स फॉर्मेशन रेट ऑलमोस्ट इक्वल्स इट्स डिप्लीशन रेट। लेकिन बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज हमने ये बैलेंस डिस्टर्ब कर लिया है, डिप्लीशन ज्यादा है, फॉर्मेशन कम हो रही है। आपके लिए वैसे गुड न्यूज है, हम इस पे भी बात करेंगे। आपको पता है ओजोन होल इज हीलिंग बेसिकली ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स। पिछले साल तो हम कल नासा की पिक्चर्स देखेंगे और देखेंगे कि 10-12 सालों में कितना हील हुआ है, ठीक है? लेकिन इट्स नॉट डिप्लीटिंग एनी मोर, इट्स नाउ इन द हीलिंग फेज, विच इज ए वेरी वेरी ग्रेट न्यूज। हम इसको हमारा अगला लेक्चर भी इसी बारे में है, तो उसमें हम डिटेल में इसकी बात करें। ओके अच्छा, अब एक जो तीसरी चीज हमने देखी है वो ये है कि इफ वी जस्ट लुक इनटू द एज, ये जो एज है आपका अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का एज, इस एज में हम देखें तो अब्जॉर्प्शन आप देखें तकरीबन लीनियरली या बड़ी ग्रेजुअली डिक्रीज करती जा रही है विद द नैनोमीटर, और तकरीबन 320-325 के बाद ओजोन के बस की बात भी नहीं है कि वो यूवी लाइट को अब्जॉर्ब कर सके फर्दर। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें ये भी पता चल गया कि ओजोन जो है इट इज शील्डिंग अस फ्रॉम सनलाइट, लेकिन ये इस रीजन में इट्स नॉट सो इफेक्ट, यानी 280 से 300-320 तक हम देखते हैं तो अब्जॉर्प्शन ओजोन की बहुत कम है फॉर यूवी लाइट। सो नाउ इट इज नॉट कंप्लीटली इफेक्टिव, ठीक है? इट अब्जॉर्ब्स, डज अब्जॉर्ब, लेकिन कि इट्स जस्ट द अब्जॉर्प्शन एज जहां पे हम बात कर रहे हैं। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये जो मोस्ट ऑफ द यूवीए है, यानी 320 से लेके 4 नैनोमीटर तक, इसको ऑब्जर्व करने के लिए एटमॉस्फेयर में कुछ भी नहीं है, इन दैट रीचेस द अर्थ। अब ये जब यूवीए आता है हमारे पास, यानी द वेवलेंथ्स विद द रेडिएशन विद 320 to 400 नैनोमीटर, दे कॉज सम हार्म, और वो हमने अब देखना है कि इसको क्या कर सकते हैं। There's a question कि what happens to the UV in the range of 50 to 200 nanometer? अच्छा, अगर हम देखें तो हमने ये कहा था कि some part of it is absorbed by the oxygen molecule in the mesosphere, and that's why it is, we say it is absorbed by the oxygen molecules there, ठीक है? क्योंकि ऑक्सीजन का जो हमने स्पेक्ट्रम देखा था उसमें हमने कहा था कि तकरीबन 60 से लेके अब्जॉर्प्शन उसकी डिसेंटली शुरू हो जाती है, ठीक है? तो मोस्ट ऑफ द पार्ट विच यू आर टॉकिंग अबाउट इज बेसिकली अब्जॉर्ब्ड बाय ऑक्सीजन, और फिर कुछ हद तक उसको ओजोन भी शुरू हो जाता है, जो कि खैर वो 200 to 20 नैनोमीटर पे शुरू होता है, लेकिन इट्स मोस्टली ऑक्सीजन दैट अब्सॉर्ब्स इट। अच्छा, there are some questions. I think we should talk about them here. अब यहाँ पे हाफी आपका क्वेश्चन है कि what is the extent of absorption greater than 1? I think I'll get back. It is a very specific question with respect to the spectroscopy. और हमारे पास जो ऑडियंस बैठी है, it's quite from computer science और बाकी डिसिप्लिन से हैं, तो आई थिंक कि इसी वजह से मैं जो केमिस्ट्री है ना वो बड़ा कम इसमें रख रहा हूँ। तो आई बी रिस्पॉन्डिंग टू यू, ठीक है, सोनली।
Wafa, if UVA has the least energy, so this is an interesting question. So I'm opening it to you all. The question is, if UVA has the least energy, largest or the longest wavelength, how does it manage to reach the Earth? I repeat कि UVA का अगर एनर्जी मिनिमम है यानी मैक्सिमम उसकी वेवलेंथ है तो हाउ कम कि वो इट इज रीचिंग द अर्थ. So any thoughts about it? I think compared to UVA, Anyone? compared to the UV other is types means of like UV light, it has less energy. But if you compare to other types of light like infrared, etc., so it still has greater energy. That's why. अच्छा, अब आप देखें ना कि यूवी से लॉन्गर वेवलेंथ्स भी एग्जिस्ट करती हैं जिन्हें हम विजिबल लाइट कहते हैं, राइट? तो व्हाइट लाइट तो पहुंच रही है, तो यूवी तो फिर भी उससे बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है. तो एनर्जी हैज लिटिल टू डू विद द प्रोपेगेशन ऑफ द लाइट. ठीक है, दे आर स्टिल एनर्जेटिक टू रीच एनीथिंग. और इवन हमने देखा कि इवन तो नियर जो इंफ्रारेड रेडिएशंस है व्हिच आर फार 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 लेस एनर्जेटिक देन द यूवीए, they are reaching the earth surface and causing the global warming. यानी जो IR रेडिएशंस है ना वो ज्यादातर के जो नियर IR रीजन है उसकी कुछ रेडिएशंस भी जमीन पे पहुंच जाती हैं, राइट? आई होप कि दैट आंसर्स. ओके, सो मूविंग फर्दर. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात ये है, वो ये है कि what is the effect of ozone depletion? अगर आप ओजोन की जो लेयर है उसमें 1% चेंज लेके आते हैं तो जमीन पे जो यूवी रेडिएशंस पहुंचेंगी, यूवी बी, वो 2% इंक्रीमेंट आता है उनके अंदर. तो इस वजह से अब ये है कि ओजोन डिप्लीट होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ज्यादा खतरा क्या है. यूवीसी का मसला नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन इज देयर इन मेजर्स, वो तो करती रहेगी. यूवी बी का जो एक्सटेंट है हमारी सनलाइट के अंदर वो बढ़ता जाएगा और फिर उसने बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज है ना वो करने हैं. मसलन ये जो यूवी बी है दैट काजेस ये तो सन बर्न करती है. फिर उसके बाद अगर आपको ओवर एक्सपोजर है तो ये स्किन कैंसर भी हो सकता है. स्किन कैंसर में जो मोल्स बनते हैं बेसिकली बॉडी के ऊपर, ठीक है, और हो सकता है 15-20 साल पहले आप एक्सपोज हुए हो यूवी बी के ऊपर, और कैंसर अगर डेवलप होगा तो इट कैन टेक 15, 20, 25 ईयर्स. यानी इतना स्लो प्रोसेस है इसका. लेकिन उसकी एक जो निशानी होती है वो ये होती है कि बॉडी के ऊपर कोई भी ऐसे मोल जिनकी बड़ी इरेगुलर शेप्स हो और वो थोड़े से एक्सपेंड करना शुरू होना शुरू हो जाए, तो आई थिंक वन शुड इमीडिएटली कंसल्ट डॉक्टर. हमारे यहाँ तो वैसे भी ये रीजन लकीली ऐसा है कि यहाँ पे यूवी लाइट नहीं है, लेकिन जो हाइट्स पे लोग नॉर्थ की साइड पे रहते हैं, ज्यादा अल्टीट्यूड पे रहते हैं, तो वहां पे यूवी एक्सपोजर काफी ज्यादा है. इट मे आल्सो कॉज फ्रैकल्स ऑन द स्किन एंड सो ऑन. आपने खुद देखा होगा कि जब आप किसी बहुत ही ऊंची पहाड़ी पे जाते हैं समर में तो यू गेट सनबर्न्स देयर. तो उसकी वजह यही है कि आपका जो यूवी बी एक्सपोजर है टू. There is a question from Azan ki how did you get 1:1 ratio? So this is, Azan, it is the reported value. Okay, I do not know how do they calculate that, but this is an approximation कि अगर 1% decrement आता है. Actually, we have the ways. NASA आपको पता है कि मतलब काफी सालों से they are measuring a bit of every bit of it कि भाई कितने परसेंट उसमें होल आते जा रहे हैं, और फिर जमीन के जो टेम्परेचर हैं, सरफेस टेम्परेचर, वो भी हम कंटिन्यूसली मेजर करते हैं. तो आई थिंक ये रेशियो फाइंड करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है. ठीक है, व्हेन वी आर मेजरिंग बोथ टेम्परेचर एंड द ओजोन लेयर डिप्लेशन एवरी ईयर. तो ये इसकी कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी हम बात करते हैं, हेल्थ इफेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं.
अच्छा, ये जो स्किन का कैंसर है ना, जिसे हम कहते हैं मैलिग्नेंट मेलानोमा, या सिर्फ मेलानोमा भी कहा जाता है। लकीली इट इज नॉट सो फैटल, ठीक है? इसका जो डेथ रेट है ना वो इतना ज्यादा नहीं है, बल्कि इट्स क्योरेबल। स्किन का वो हिस्सा रिमूव कर दिया जाए तो ये इतना प्रोपेगेट नहीं करता, लेकिन अगर प्रोपेगेट कर दे तो ये जाहिर बात है ब्लड में जाके फिर पूरी बॉडी को अफेक्ट कर सकता है, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट्स ट्रीटेबल। अच्छा, the other health effects are, कि मसला ये है कि यूवीबी को डीएनए के मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब करते हैं, और फिर उसकी वजह से जाहिर बात है कि उनमें चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, डैमेजिंग रिएक्शन शुरू हो जाती हैं। मसलन यहाँ पे अगर आप देखें तो देयर इज अ प्लॉट, अगेन वेवलेंथ है यहाँ पे हमारे पास। इस एक्सिस पे हमने बायोलॉजिकल सेंसिटिविटी ड्रॉ की हुई है पर फोटोन। कि हमने अभी हम बात करेंगे कि फोटॉन्स क्या होते हैं, आपको पता भी होगा फोटॉन। यहाँ पे हमने प्लॉट किया हुआ है लाइट की इंटेंसिटी। तो हमने देखा है कि एज वी मूव टुवर्ड्स द लॉन्गर वेवलेंथ, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, और ये जो सेंसिटिविटी है उसका एज यहाँ पे आगे खत्म हो जाता है डीएनए का। 360 नैनोमीटर से लो जो वेवलेंथ रखने वाली रेडिएशंस होंगी, डीएनए इज मोर सेंसिटिव अबाउट दैम। और ये जो पॉइंट है यहाँ पे, जो मीटिंग पॉइंट है, ये शो करता है कि मैक्सिमम सेंसिटिविटी डीएनए की इस रेडिएशन के लिए होगी, जो तकरीबन 300 नैनोमीटर बनता है। तो बल्कि हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो लाइट स्किन पीपल हैं, लोग हैं जिनकी स्किन कलर फेयर होता है, तो उनमें ऑब्जर्व ये किया गया है कि 300 नैनोमीटर की जो रेडिएशंस हैं वो बहुत ज्यादा ऑब्जर्व होती हैं। और आपने देखा होगा कि जो ब्राउन हैं या ब्लैक पीपल हैं, उनमें स्किन के कैंसर की इतनी केसेस नहीं है जितने व्हाइट्स के अंदर हैं। और उसकी वजह यही है कि स्किन के अंदर भी हमारे पास एक पिगमेंट होता है जो कि which is very good in absorbing the harmful radiations और उनके जो इफेक्ट्स हैं। तो वाइट स्किन या लाइट स्किन वाले जो लोग हैं उनके अंदर एग्जैक्टली दिस इज कॉल्ड मेलानिन। तो उनमें 300 नैनोमीटर की जो रेडिएशन है वो ज्यादा अब्जॉर्ब होती है। अच्छा, कुछ और भी हम बात करते हैं कि यूवीबी आई के अंदर देयर इज अ सेटअप के वो यूवी रेडिएशन को फिल्टर आउट कर सकते हैं, लेकिन यूवीबी अगर रेटिना को रीच कर जाए, जो कि आंख का स्क्रीन होती है बेसिकली, तो उसको ये डैमेज करके टोटल ब्लाइंडनेस भी कर सकते हैं। और ये जो आई कैटरैक्ट्स होते हैं, ये भी इस वजह से बनते हैं, स्पेशली जो यंग एडल्ट्स हैं उनके अंदर। और ह्यूमन इम्यून सिस्टम को भी सुप्रेस कर सकती है यूवी। और लेकिन इसका एक ही फायदा है लाइट का, कि दैट हेल्प्स अस। सनलाइट का एक ही फायदा है कि इट हेल्प्स अस इन द सेंस ऑफ विटामिन डी। और विटामिन डी जो हड्डियां बननी हैं उनके अंदर इसका रोल है। विटामिन डी जो है वो इम्यूनिटी में बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है। इसके लिंक्स देखे गए हैं कि विटामिन डी की कमी से कैंसर, स्पेशली जो कोलोरेक्टल कैंसर्स हैं, वो उसकी एक रीजन ये भी हो सकती है, एंड मेनी अदर थिंग्स। अच्छा, इसके लिए सनस्क्रीन्स हम यूज करते हैं। सनस्क्रीन्स कैसे काम करती हैं, देयर इज अ ब्रीफ पैराग्राफ, तो आई विल नॉट गो इनटू दैट, आप उसको रीड कर लें, ठीक है? कि सनस्क्रीन्स क्या है और वो क्या काम करती हैं। कि दे हैव सम नैनो पार्टिकल्स, जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड के, ठीक है? तो let's talk about the variation of in light's energy with wavelength. और इसके लिए कुछ हम concepts रिवाइज करते हैं। हमें पता है कि जो लाइट है इट हैज ए डुअल नेचर, इसमें पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज भी हैं, इसमें वेव लाइक प्रॉपर्टीज भी हैं। और वी नो कि इसके अंदर डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं जिन्हें हम फोटॉन्स कहते हैं, ठीक है? और उनको हम बेसिकली इस तरह से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एच न्यू, जिसमें ई इज द एनर्जी, एच इज ए कांस्टेंट जिसे हम प्लांक्स कांस्टेंट कहते हैं, वैल्यू पता हमें, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स, हमें सिर्फ इससे ये पता चल रहा है कि जितनी वेवलेंथ शॉर्ट होगी उतनी ही एनर्जी ज्यादा होगी वेवलेंथ के अंदर, ठीक है? यानी इसका मतलब है कि उतनी ही ज्यादा एनर्जी वो वेवलेंथ ट्रांसफर कर सकती है टू द मैटर। अपनी कैलकुलेशंस के लिए हमने ये किया हुआ है इन मोलर टर्म्स, जब हम इसको करते हैं विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स,
we can give a value of 119,627 kilojoules per mole nanometer to this value of Hc. ठीक है, और उसके बाद हम इस इक्वेशन को चेंज करके यूं भी लिख सकते हैं. ठीक है, अब इसको चेंज करने में इस तरह से हमें फायदा ये है कि वी कैन कैलकुलेट और वी कैन डू मेनी कैलकुलेशंस वेरी इजीली. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द एनर्जी किलो जॉल्स पर मोल में आपने बताना है विद द फोटॉन्स हैविंग द फॉलोइंग वेवलेंथ्स. ये जरा आप जल्दी से क्विकली मुझे बता दें. इनको कैलकुलेट करें, आप अपने कैलकुलेटर, मोबाइल, सेल फोन, एनीवे किसी पे भी कर सकते हैं. अगर एक रेडिएशन है 280 नैनोमीटर की, तो उसकी एनर्जी क्या होगी? 400 नैनोमीटर, 750 और 4000. तो बेसिकली आप देखिए कि 2 आर रेडिएशंस आर इन द यूवी रीजन और एक जो है वो विजिबल रीजन में है और एक जो है वो आईआर रीजन के अंदर है. तो इन सब का हमने देखना है कि व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद दैट. तो हम सिंपली ये वाला फॉर्मूला है, हम इसे यूज कर सकते हैं. इसमें हमने किया ये है इस फॉर्मूले के अंदर कि मैंने आपको बताया इसको हम मॉलिक्यूलर टर्म्स में लेके आए हैं और बाकी डिटेल्स मेरा ख्याल है कि कोई जरूरी नहीं है इसकी. So you need to just put in the wavelength value in this formula, जैसा कि 280, और उसके बाद आपके पास एनर्जी आना शुरू हो जाएगी इन किलो जॉल्स पर मोल. ठीक है, और उससे फिर हम इन कॉन्सेप्ट्स को हम आगे लेके चलेंगे. सो आप मुझे बताइए ताकि मैं इनके आगे इसको लिखता जाऊं. A is 4 to 7.23. to 7 और 4.27. ग्रेट. सो अभी मेरे पास जो है ना वो इसके आगे हैं आंसर्स. So I believe that this is 427 all in the kilojoules per mole, and this one is 299. अगर मैं गलत कर रहा हूं तो फिर मुझे बताइएगा. 750 is 159.5, and lastly, sorry, this is 4000 और इसकी 29.9. ओके, सो ये एनर्जीज हैं इन सारी की सारी रेडिएशंस की. ठीक हो गया, इनको अभी हम फिर कहीं यूज करने की कोशिश करते हैं. अच्छा, ये हाँ, वी आर डन विद दैट. ओके, अच्छा, अब व्हाट नेक्स्ट. अच्छा, समटाइम्स ये होता है कि यू नो कि इफ यू वांट टू स्प्लिट ए मॉलिक्यूल इनटू द एटम्स you need some energy, जिसे हम एंथैल्पी भी कहते हैं. ठीक है, this is another way of calling it. ठीक है, एंथैल्पी of various reaction is basically the energy that is needed to conduct that reactions. ठीक है, तो बेसिकली हमने देखा है कि यूवी लाइट के अंदर एग्जैक्टली वैसी ही एनर्जी मौजूद है जैसी कुछ रिएक्शन शुरू करने के लिए चाहिए. ठीक है, यानी enthalpy changes that are associated with different chemical reactions, they match the energy of UV light बड़ी आसानी के साथ. मसलन हमने ये देखा है कि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को अगर आपने स्प्लिट करना है ना इनटू एटम्स, तो फॉर दैट यू नीड द एंथैल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन इज 498 किलोजूल्स पर मोल. इतनी एनर्जी आपको है तो आप ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर सकते हैं. यानी इस रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूं कि द एंथैल्पी चेंज इज दिस मच. अब हमने ये फाइंड कैसे की है? ये बड़ा आसान तरीका है कि आपको पता होगा कि एंथैल्पी चेंज जब हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो इट इज ऑलवेज द एंथैल्पी चेंज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट्स, यानी कि दिस वन, माइनस एंथैल्पी चेंजेस एसोसिएटेड विद द रिएक्टेंट्स जो कि O2 है. दोनों का बेसिकली आपने सम लेके चलना होता है. तो इन अदर टर्म्स यहाँ पे हमारे पास जो केमिकल इक्वेशन है उसमें चूंकि 2 यहाँ पे इन्वॉल्व है तो हम इसको ऐसे ही लेके चलेंगे. तो बेसिकली हमने देखना है कि व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ
gaseous oxygen atoms. And what is the enthalpy of formation of the oxygen, molecular oxygen in gaseous atoms? तो हमारे पास टेबल्स मौजूद होते हैं एंथैल्पी की वैल्यूज की। आप कहीं से भी एंथैल्पी चेंज फॉर वेरियस केमिकल रिएक्शंस टेबुलर फॉर्म में ले सकते हैं। और जब हमने देखा तो इस रिएक्शन के लिए यानी ऑक्सीजन जब बनती है गैसियस फॉर्म में तो एंथैल्पी चेंज इज 249.2 और O2 के लिए 0 है बिकॉज दिस इज द वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल और हम इसको आर्बिट्रेरीली एंथैल्पी चेंज 0 लेते हैं। इसकी टेबल के अंदर आपको मिलेगी। तो इस तरह से करके हमने इसे 498.4 ये जो वैल्यू है वो कैलकुलेट की हुई है। अच्छा, आपको बताना ये है कि हमने अगर इसमें ये रिलेशन अगर यूज करें विच इज थोड़ी देर पहले हमने E इज इक्वल टू एच न्यू को मॉडिफाई करके लिखा था, इसमें अगर हम लेमडा फाइंड करने चाहें और वी अज्यूम के दिस बेसिकली इक्वल्स द एनर्जी, ठीक है, अगर ये ऑलमोस्ट एनर्जी को अगर इक्वल करे तो क्या हो जाएगा? हमारे पास लेमडा निकल आएगा 240 नैनोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि भाई ऑक्सीजन को तोड़ के 2O बनाने के लिए आपको जो वेवलेंथ चाहिए या जो एनर्जी चाहिए वो इतनी वेवलेंथ रखने वाली रेडिएशन के अंदर होगी। तो इन प्रिंसिपल व्हेन ऑक्सीजन absorbs a radiation of 240 nanometer, it can split into the oxygen atoms. ठीक है, लेकिन उसके लिए अब्जॉर्प्शन की शर्त है कि वो अब्जॉर्ब करे इसको। क्या ऑक्सीजन 240 नैनोमीटर में अब्जॉर्ब करता है? क्या स्पेक्ट्रम है उसका? हमने कहीं बनाया था इधर? ठीक है। अच्छा, अब आप देखें 240 नैनोमीटर इज द थ्रेशहोल्ड। तो अगर इससे 240 नैनोमीटर से रेडिएशन कम भी होगी तो वो इसका मतलब है ज्यादा एनर्जेटिक होगी। तो एनी oxygen molecule that absorbs 240 nanometer or less can in principle split into two oxygen atoms. हम chemically इसको यूं लिख सकते हैं कि oxygen will take a UV photon of let's say wavelength less than 240 nanometer and will split into two oxygen atoms. और this is a photochemical type of dissociation, जो कि photo energy यूज हो रही है, light यूज हो रही है और इसको हम photolysis भी कहते हैं। तो ऑक्सीजन का photolysis ऐसे होता है। Is that clear? Yes, sir. Great. So basically हम ये सारी बेस बना रहे हैं कि भाई ओजोन कैसे ऑक्सीजन के साथ क्या होता है और ऑक्सीजन क्यों यूवीसी को ऑब्जर्व करता है। तो हमें पता चल गया कि भाई जबरदस्त ऑक्सीजन को स्प्लिट करने के लिए जो एंथैल्पी एसोसिएटेड है दैट एग्जैक्टली मैचेस द एनर्जी ऑफ द यूवी लाइट, दैट्स व्हाई इट डज। अब आप मुझे ये प्रॉब्लम है जरा क्विकली हम इसे करें। Enthalpy of decomposition of ozone is 105 kg kilojoules per mole. ओजोन जब स्प्लिट होता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और एक एटॉमिक ऑक्सीजन बनती है। What is the longest wavelength of light that could dissociate ozone in this manner? फिर आप मुझे ये बताइए कि वो जो रेडिएशन है वो किस रीजन में फॉल करती है, यूवी, विजिबल या इंफ्रारेड? ये आपकी गाइडलाइन वैल्यूज है। One 139 nanometer. Great. So answer is 1139 nanometer. और ये किस में फॉल करता है? Is it UV light, visible light या infrared light? देखिए, विजिबल रीजन के बाद इंफ्रारेड शुरू हो जाता है, ठीक है? तो इट इज नियर इंफ्रारेड रीजन, ठीक है? 4000 से तो सही रीजन जो 1000 के करीब है, 750 के बाद बेसिकली नियर इंफ्रारेड रीजन है। तो दिस इज इंफ्रारेड। तो अब आप देखें कि ओजोन को स्प्लिट करने के लिए वी नीड इवन लेस एनर्जेटिक रेडिएशंस जो कि उसको स्प्लिट कर सकती है, ठीक है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को तो स्प्लिट करने के लिए 240 नैनोमीटर की हमें या उससे लोअर की हमें चाहिए थी। तो इसके लिए हमें 139 और लोअर जो है ना वो
वेवलेंथ चाहिए होगी जो कि इंफ्रारेड के अंदर फॉल करता है। ओके, सो क्विकली हम देख लेते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन जब ऑब्जर्व करते हैं ना लाइट, तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। हम कहते हैं कि इट इज एक्साइटेड, यानी इलेक्ट्रॉन जो लो एनर्जी लेवल्स हैं हाई एनर्जी लेवल्स में चले जाते हैं। दैट्स द ओनली थिंग, और हम उनको स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब होता ये है कि ये एक्साइटेड स्टेट बड़ी शॉर्ट होती है, मतलब फ्रैक्शंस ऑफ द सेकंड, और उसके बाद उन्होंने कुछ ना कुछ करना होता है। क्या करना होता है कि या तो वो वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं, या केमिकली रिएक्ट करते हैं, या अपनी एनर्जी किसी और चीज को पास कर देते हैं। ठीक है, यानी हम इसको यूं लग सकते हैं कि व्हेन एनी स्पीशीज M कैचेस ए फोटॉन, इट गेट्स एक्साइटेड। एक्साइटेड के बाद वो ये हो सकता है कि वो वापस, मतलब इट कैन पास द एनर्जी एंड इट जस्ट गेट बैक्स टू द ग्राउंड स्टेट बाय इमिटिंग द लाइट, यानी रोशनी की सूरत में, रेडिएशन की सूरत में वो एनर्जी इमिट कर सकती है, वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आ गया। ठीक है, लोएस्ट एनर्जी स्टेट यानी स्टेबल एनर्जी स्टेट। दूसरी चीज ये हो सकती है कि वो इस एनर्जी को यूज करते हुए केमिकली रिएक्ट कर जाए। और तीसरी चीज ये हो सकती है कि वो उस एनर्जी को हीट की सूरत में रिलीज कर ले। तो मतलब नवरदलेस इट हैज टू डू समथिंग एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद, या तो ग्राउंड स्टेट में जाना है लाइट इमिट करके, या रिएक्शन करना है, या हीट की सूरत में उसको डिसिपेट करना है, लेकिन देयर मस्ट बी सम डिसिपेशन। अब होता ये है कि ऑक्सीजन जब फोटॉन ऑब्जर्व करता है विच इज 240 नैनोमीटर और लार्जर, तो अब यहाँ पे आप देखें कि ऑक्सीजन को स्प्लिट करने के लिए 240 नैनोमीटर से छोटी वेवलेंथ चाहिए आपको। यहाँ पे होगा क्या कि ऑक्सीजन कैन गेट एक्साइटेड, ओके, क्योंकि दिस फॉल्स वेल इन द अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द ऑक्सीजन, जो कि हमने देखा था, बल्कि यहाँ पे पढ़ा हुआ है, हमने देखा है कि 240 रीजन में इट अब्जॉर्ब सम लाइट। ठीक है, लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं है, इतनी एनर्जेटिक नहीं है कि वो इसको स्प्लिट करके एटॉमिक ऑक्सीजन बना सके। सो क्या ऑक्सीजन गेट्स एक्साइटेड बट रिलीजेस द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द हीट, और फिर आप देखेंगे कि वो वापस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसी तरह से हम देखेंगे कि अगर यही एनर्जी लेस देन 240 नैनोमीटर हो, तो इट विल गेट एक्साइटेड बट इट विल स्प्लिट टू एटॉमिक ऑक्सीजन। अगर ऐसा नहीं करता तो इस सूरत में भी ये हीट की सूरत में एनर्जी रिलीज करता है, लेकिन ज्यादातर जो फर्स्ट रिएक्शन है स्प्लिटिंग का, वो हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये हो जाता है। अच्छा, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि क्यों हमारे पास ओजोन बन रही है और टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहे हैं। ठीक है, ये वो रीजन है जहां पे ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज मोस्टली द एटॉमिक फॉर्म की सूरत में। Yes, this splitting of oxygen is called a dissociation reaction. ठीक है, splitting or dissociation. अच्छा, मेसोस्फीयर के अंदर अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करती होगी? बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन। मैंने आपको पहले बताया था कि ऑक्सीजन है, जबरदस्त अब्सॉर्ब करती है यूवीसी, स्प्लिट हो जाती है 2A के अंदर। क्यों स्प्लिट होगा? 240 नैनोमीटर से नीचे है वेवलेंथ, मैचेस वेल विद द एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। अच्छा, अब ये जो ऑक्सीजन है ये वापस आपस में भी कंबाइन कर सकते हैं, जो कि दे आर हाईली रिएक्टिव। ठीक है, लेकिन रिएक्शन ज्यादातर इस डायरेक्शन में प्रोसीड करता रहता है, इक्विलिब्रियम नहीं है इसके अंदर। स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर अगर हम देखें तो ऑक्सीजन इज मोस्टली एज O2। उसकी वजह ये नहीं है कि ये रिएक्शन नहीं होते, यहाँ पे होते हैं, लेकिन देयर एक्सटेंट इज लेस, और उसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो ज्यादातर इस फॉर्म में। लेकिन nevertheless when these reactions happen there is some oxygen present, यानी यहाँ पे भी ये रिएक्शन कुछ हद तक तो होता है कि ऑक्सीजन से एटॉमिक ऑक्सीजन बन जाए बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ द यूवी लाइट। अब ये जो O है ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और ओजोन बनती है विद द रिलीज ऑफ हीट। ऐसे रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहा जाता है, जिनमें हीट रिलीज हो रही है। आप समझ गए होंगे कि व्हाई द टेम्परेचर इज नाउ इंक्रीजिंग इन दिस रीजन। आपको याद हो तो हमने देखा था कि ओजोन जहां पे मौजूद है स्ट्रेटोस्फीयर में है, उसमें अल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर जो है वो राइज करना शुरू कर देता है, और राइज इसलिए कर रहा है कि ओजोन की फॉर्मेशन से हीट रिलीज होती है, और दैट्स गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर।
एंड आखिरी बात ये है कि ट्रोपोस्फियर के अंदर अगर आप देखें तो इसमें ओजोन फॉर्म नहीं होती, बहुत कम बनती है, बल्कि कम बनती नहीं है। ओजोन अगर ट्रोपोस्फियर में कोई है भी तो ये इन स्फीयर से मूव करके आती है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर से ज्यादातर आती है विद द यू नो द मूवमेंट ऑफ एयर। तो उसकी वजह क्या है कि यहां पे क्यों नहीं बन पाती? ट्रोपोस्फियर में ओजोन क्यों नहीं बनती? सर यूवी ऑलरेडी फिल्टर हो चुकी थी हाई एनर्जी। एग्जैक्टली, यू नीड 240 नैनोमीटर और लेस। वो है ही नहीं, फिल्टर आउट हो गई है स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर के अंदर। दैट्स व्हाई ट्रोपोस्फियर में ओजोन की फॉर्मेशन नहीं हो रही है। अगर ओजोन है तो ये इस वजह से आ रही है। आई थिंक आवर टाइम इज अप, राइट? सो just to summarize, today we talked about the atmosphere, layers of the atmosphere, how light interacts with the matter, और उसकी जो एनर्जी और वेवलेंथ का क्या रिलेशनशिप होता है, ओजोन कैसे बनती है, कैसे डिप्लीट करती है, और स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर के अंदर यूवी लाइट कैसे फिल्टर आउट होती है, और कौन से रिएक्शंस हैं जो उसको फिल्टर आउट करते हैं। ठीक है, तो मोस्टली ये था। अगला जो हमारा लेक्चर होगा दैट विल बी एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली अबाउट दी, अच्छा मेरा ख्याल है कि ये जो आखिरी वाली स्लाइड है ना, ये आप इसे कंसिडर समझें, क्योंकि मैंने क्रिएशन ऑफ द ओजोन के बारे में आपको बेसिकली बता दिया है कि हाउ इट हैपेंस बेसिकली। ठीक है, तो अगला जो लेक्चर है, इस स्लाइड को मैं इधर रख रहा हूं, अगला जो लेक्चर है वो हम डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्ट्रेटोस्फियरिक ओजोन के बारे में करेंगे। ठीक है, यानी क्रिएशन ऑफ ओजोन इज इंक्लूडेड टुडे, बिकॉज आई डू नॉट थिंक कि हमने इसके कोई पहलू छोड़ दिए हों। ठीक है, सारी की सारी बातें तकरीबन हम इसकी कर चुके हैं। सो दिस इज इट फॉर द डे। आई होप कि अगर आपके में से किसी के क्वेश्चंस में नहीं ले पाया हूं तो आई कैन लुक इनटू बैक। आप क्विकली मुझे बता दें किसी का अगर मैंने क्वेश्चन आंसर ना किया हो इन द चैट बॉक्स, तो यू कैन स्विच ऑन योर माइक एंड आस्क। Actually, there's a question about the book. Can I upload it on LMS? I can't. I can't because you know, it's a. I do not have the rights to distribute this PDF, which is not legal. ठीक है, I really think कि ये मेरा हाल है कि ये जो साई हब है, ये बुक या इस तरह की किसी साइट से डाउनलोडेड है, तो इसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना जो है ना वो लीगल नहीं है। तो व्हाट आई हैव डन कि मैंने उसको ड्रॉप बॉक्स पे अपलोड किया हुआ, आई थिंक, राइट? एक्सेस हुआ आपको आपको बुक के नहीं, किस सबका मसला है? Sir, I couldn't I, access it. right? Sorry? Sir, I couldn't access it. ओके, ठीक है, तो इसका मतलब लिंक के साथ कोई इशू नहीं है। द नेम ऑफ द बुक इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बाय बेयर्ड, BAIRD। ठीक है, और मैंने इसका एक लिंक आपके साथ, आप क्या करें, रिसोर्सेज में जाएं, LMS के अंदर रिसोर्सेज के अंदर रीडिंग मटेरियल का एक फोल्डर है, उसके अंदर इसका लिंक पड़ाओ। ठीक है, सारी के सारा रीडिंग मटेरियल रिसोर्सेज के अंदर है। ठीक है, ओके। स्ट्रेटोस्फियर में एक क्वेश्चन है, मेरा ख्याल है कि मैं इसको आंसर करके फिर आज हम एंड करते हैं। वो ये है कि in stratosphere UVA does interrite, so won't they contribute towards the splitting of the wavelength is not enough for that? Stratosphere के अंदर UVA interrite. Yes, the answer is कि महानूर कि again हमें हर वेवलेंथ के साथ एक एनर्जी एसोसिएटेड है।
that energy must match the splitting energy of some chemical reaction, like the ozone की splitting है, या सॉरी ऑक्सीजन की स्प्लिटिंग है या ओजोन की फॉर्मेशन है, ठीक है, या इस तरह के कोई और भी फोटोकेमिकल रिएक्शन हो सकते हैं। तो हमारे पास ये एनर्जी का मैच नहीं आ रहा, ठीक है, जिसकी वजह से दैट डजंट हैपन, ठीक है, क्योंकि ये जो हमने कैलकुलेशंस की है ना वो इसीलिए की थी कि किसी डिसोसिएशन रिएक्शन के लिए हमने देखना था कि एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है, जिसे हम एंथैल्पी का नाम देते हैं। तो अगर वो मैच नहीं करता तो दैट रिएक्शन कैन नॉट हैपन, ठीक है। Okay, in case you have other questions, I think I have my office hours from 4 to 5 today, ठीक है, और you can join me there, चूंकि lectures के अंदर unluckily हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है डिस्कशन के लिए, लेकिन that's why we have the office hours. We have TA office hours जो मैं आज एडवर्टाइज कर रहा हूँ, we have instructor office hours, and these are the things जहाँ पे बड़े आप आराम से और लंबी डिस्कशंस कर सकते हैं, ठीक है। Okay, I wish you a good day and Allah Hafiz from my side. I'll see you next week. और अभी से आपको एक happy weekend. अल्लाह हाफिज सर। Allah Thank you, sir. Hafiz. Allah Hafiz. Hafiz.